Good evening, church, and welcome to Eden Springs online service. My name is Angela, and it's a delight that you could join us today. I welcome each one of you on behalf of our pastors and our leaders. Psalm 37:4 says, "Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart." So let's just dive into that worship that we are called to do because He deserves the highest praise. Help me welcome Shane Halliburton, who's going to lead us in worship. Hey guys, how you doing? It's been such a while since all of us hung out together and enjoyed each other's company. I pray you're doing well. I hope you're living the good life. I hope you're feasting on good food, natural as well as spiritual. I find that the more I read God's word, the more I grow. The more I grow, the more I mature. And yet the more I mature, I still find myself in such desperate need of His love, the grace that comes from His love. And so even as we get into worship tonight, we're going to start off with a song called "I Need Your Love." And I pray as you get a grip on the lyrics and the music, that it would not just be another song, but really you'd let your heart fly as you reiterate your need for His love, His perfect love which casts out all fear from your life, His love which covers a multitude of our sins, and His love which helps us make it through. Amen. Join me even as we sing to our Savior tonight.
every inch of my heart, from top to bottom, left to right, outside me and inside. Fill me with the power of your love. Sing that again. Let your love come crashing through the barriers that keep us apart. Let it wrap itself around every inch of my heart, from top to bottom, side to side, outside me and inside. Oh, fill me with the power of your love. I need your love, your love, Jesus. I need your love, your love, Jesus. Amen. Yes, Father, we'll never run out of your love, God, because it's your love that helps us make it through this life. It's your love that literally gets us from one day to another. It's your love that makes us strong, Lord. It's your love that leads and guides us, Jesus. And without your love, we'll always be incomplete, Jesus. Amen. Isn't he beautiful? Isn't he wonderful? He's called by many names, right? Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, the Lion of the tribe of Judah. Amen. But every name is just beauty personified. Amen. So let's just sing about how wonderful, how beautiful he is. Join me tonight wherever you are. Clap your hands, put on your dancing shoes, and praise his name. Amen. Here we go. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart can fully know how glorious, how beautiful you are. Sing, beautiful one. Powerful, so powerful, your glory fills the skies, your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my soul to sing. How wonderful, how beautiful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Nothing like you, Jesus. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you.
nothing and no one. You opened my eyes to your wonders anew. You captured my heart with this love, 'cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. And my soul must sing. Come on. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one, my soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. My soul must sing. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore you. Beautiful one, my soul will sing. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great No, my delight it is in you, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in you, Lord. Forevermore, my oh, my delight is in you, Lord. All of my hope, all of my
crucified to set me free. Now I live for you, God. We live for you, Jesus. Oh. Our hearts are yours. Our souls are yours. Our whole lives we lay down living sacrifices, God, knowing that you're consuming us with fire. You're consuming us, Lord God, with fire, Lord God, washing us, sanctifying us, cleansing us in your blood, Lord, so that we can live for your glory. Amen and amen. God bless you, church. Even as you listen to the word, be blessed. Thank you, Shane, for leading us in worship. And now we get into the word. Help me welcome a wonderful leader who has been so obedient to God over the years. He's been pastoring the Nainpur Church. Brothers and sisters, help me welcome Pastor Aubrey, who's going to teach us on Psalm 112. Psalm 112. Praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on the earth. The generations of the upright will be blessed. Wealth and riches will be in his house. His righteousness endures forever. Unto the upright there rises a light in the darkness. He is gracious, full of compassion, and righteous. A good man deals graciously and lends. He guides his affairs with discretion. Surely he will never be shaken. The righteous will be an everlasting remembrance. Not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established, he will not be afraid until he sees his desires upon his enemies. He has dispersed to the abroad. He has given to the poor. His righteousness endures forever. His horn will be exalted with honor. The wicked will see and be grieved. He will gnash his teeth and melt away the desire of the wicked. सभी विश्वासी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। आज बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके अभिषेक में पाए जाते हैं। बाइबल कहती है प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। जब हम आनंदित होते हैं प्रभु में तो प्रभु हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है, बल और ताकत देता है। और आज जो हम शिक्षा जो हम मैं देना चाह रहा हूँ, हमारी मुंबई की कलीसिया ने यह निर्णय लिया है कि हम भजन संहिता की पुस्तक का एक एक अध्याय सभी पासवानों को उसका संदेश देने के लिए उनको कहेंगे और उसकी शिक्षा पूरी कलीसिया प्राप्त करेगी। तो मुझे भजन संहिता 112 जो है शेयर करने का अवसर मिला है और हम हमारे पासवान को, मुंबई के पासवान पास्टर एल और ईएन पास्टर और सभी वहाँ के जितने लोग हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और भजन संहिता की पुस्तक बहुत ही प्यारी पुस्तक है और सब भजन संहिता पढ़ना चाहते हैं
भजन संहिता है, नीति वचन है, सब बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई है। भजन संहिता की पुस्तक जो है एक कविता वाली पुस्तक है, एक सॉन्ग वाली पुस्तक है। जो भजन जो है एक वर्शिप के लिए भी कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, गाया जाता है। और भजन संहिता 112 जो है दाऊद राजा ने इस भजन को लिखा है। बड़ा सुंदर ही भजन दाऊद राजा ने लिखा है। तो हम जो है देखते हैं दाऊद राजा भी एक अच्छा आराधक था, बहुत अच्छी आराधना करता था। वो अपने भेड़ बकरियों को लेके जो है जंगलों में जाकर दोपहर के समय नदी के शीतल जल के किनारे छाए में बैठकर दोपहर के समय अपने 10 तार वाली वीणा लेकर वो परमेश्वर की आराधना करता था। और परमेश्वर उसकी आराधना से प्रसन्न होकर उसको बल और सामर्थ और ताकत और अभिषेक देता था। और उसकी दृष्टि दाऊद राजा के ऊपर बनी रहती थी। और परमेश्वर जो है उसके भजन से जो है प्रसन्न रहता था। और दाऊद जो है एक अभिषिक्त व्यक्ति था, बालक था। उसने अपने भेड़ों की सुरक्षा, एक अच्छा चरवा बनकर भेड़ियों का सामना किया, भालुओं का सामना, सिंह का मुंह फाड़ दिया। वो ऐसा सामर्थ पाया हुआ बालक था जो परमेश्वर से अभिषेक प्राप्त किया हुआ था। जैसे सिमसोन भी परमेश्वर के अभिषेक में बहुत ताकतवर जो व्यक्ति था, वैसा ही जब एक अच्छे आराधक हम बनते हैं, परमेश्वर हमको अपनी सामर्थ से भरता है। और दाऊद जैसा एक अच्छा चरवा बनाता है जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देने के लिए भी तैयार था और उनकी सुरक्षा करने के लिए। वैसे ही परमेश्वर आज ऐसे आराधकों को ढूंढता है कलीसिया के लिए कि जो उनकी कलीसिया की जो है ऐसी ही देखरेख करे। और दाऊद ने, मेरे नॉलेज में है कि भजन साहित्य उसने 73 भजन लिखा हुआ है। 73 साम्स दाऊद ने लिखे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि 2 और साम्स उसने 2 और भजन को भी लिखा है। वो उसके बारे में मुझे इतना मालूम नहीं। यदि वो 2 और लिखा है तो यानी टोटल उसने 75 भजन संहिता की पुस्तक में उसने लिखा है और बड़े सुंदर रीति से उनका वर्णन किया है। तो आज हम भजन संहिता 112 को पढ़ेंगे और फिर मैं उसको आपको समझाऊंगा। यहाँ लिखता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। जब हम परमेश्वर के भय को मानते हैं तो परमेश्वर हमको धन्य कहता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और आज्ञाकारिता मैंने आपको सिखाया है कि परमेश्वर के आशीष की कुंजी है। और जब हम आज्ञाकारी रहेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष के ऊपर आशीष देता रहेगा। और दूसरा पद कहता, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। उसका वंश, उसकी पीड़ा जो है पराक्रमी होगी, अच्छी जो है जो उसका वंश जो है वो परमेश्वर से आशीष पाया हुआ होगा। परमेश्वर की सारी सुरक्षा उसके वंश के ऊपर होगी। परमेश्वर की सारी पूर्ति उसके वंश के ऊपर होगी। परमेश्वर उनकी सारी पूर्ति कर कर उनको, उनके भविष्य को भी बड़ा उज्जवल और पराक्रमी बनाता है। और सीधे लोग की संतान आशीष पाएगी, कहते हैं, सीधे टेढ़े लोगों की नहीं। तो आज हम जो है ये दूसरे पद को हम देखेंगे, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। टेढ़े मेढ़े जो टेढ़े मेढ़ा जीवन जीता है, रद्दी जीवन जीते हैं, ऐसे लोग की संतान कभी भी आशीष को प्राप्त नहीं कर सकती। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है, उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे सुसमाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा। वह अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर संतुष्ट होगा।
उसके उद्धारता से दरिद्रों का दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर अच्छे सीधे लोगों को, जो अच्छे जो है वो आराधना करने वाले लोगों को, सच्चे दिल से जो है पवित्र दिल से उपासना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, उनको आशीष देने के लिए, उनको वो परमेश्वर अच्छे काम करने के लिए तैयार कर रहा है। और जब हम देखते हैं कि हम ऐसा जीवन जीते हैं तो परमेश्वर कहता है हम हमेशा अच्छे काम करने वाले लोग होंगे। थोड़े समय तक हम यदि अच्छा काम करते तो यह महत्वपूर्ण सफलता को हमारे जीवन में नहीं लाएगी। थोड़े समय यदि हम काम करेंगे अच्छा और सोचेंगे कि बहुत सफल जीवन हो जाएगा तो हम गलत हैं। लेकिन दूसरा थिस्सलुनीयों उसका 3:13 हमें सिखाता है और कहता है, और तुम हे भाइयों भलाई करने में हियाव ना छोड़ो। यह पद हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भलाई करना अच्छे काम के लिए कभी ना छोड़े। हालेलुया। कभी ना छोड़े। जब भी हमको अवसर मिले भलाई अच्छे काम करने के लिए तो हम भलाई करें, और भलाई करते करते यदि हम थक भी जाएं तो हमें पिता परमेश्वर के पास जाकर रुकना चाहिए, ताकि वो हमें एक नई ताजगी, एक नया बल दे, ताकि हम उसके अनुग्रह से भर के उसकी इच्छा के मुताबिक अच्छा कार्य कर सके। अपनी इच्छा के नहीं लेकिन उसकी इच्छा के। दाऊद भी भेड़ बकरियों को चराते चराते थक जाता था। दोपहर के समय में वो जाके पेड़ के नीचे विश्राम करता था और अपनी वीणा को लेकर वो जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना भजन को गाता था, और एक नया बल, एक नई ताजगी, एक नई जो है अभिषेक को वो प्राप्त कर कर जो है अपना बल फिर से पाकर प्रभु का अच्छा आराधक बनता था। उसी प्रकार यदि हम थक जाते हैं तो हमें भी परमेश्वर के पास जाकर रुकना है। और बाइबल कहती है मत्ती में, हे सब परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास जाने से हमको विश्राम मिलता है, एक नई ताजगी मिलती है, एक नया बल मिलता है, और हम फिर से वो अभिषेक प्राप्त करके हम अच्छे काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्याएं टल जाती है जब हम थमे रहते हैं परमेश्वर के पास जाकर हम आराधना। दाऊद जो है जब भी कोई बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करने के पहले वो अपनी वीणा लेकर, दस्तार वाले साज को लेकर वो परमेश्वर की आराधना करता था, और जब आराधना करते करते वो देखता था कि जैसी उसकी आराधना खत्म हुई वैसी बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म हो जाती थी। यदि हम भी दाऊद राजा का उदाहरण यदि हमारे जीवन में हम उससे सीखें तो हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी समस्याएं जो है टल जाएगी। हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, टेढ़े मेढ़े चाल नहीं चलेंगे, हम भलाई का काम करेंगे। कठिन समय में जब हम अच्छा काम करके उसका अच्छा परिणाम नहीं देखते हैं पाते हैं तो भी हमें अच्छा काम करना है। हालेलुया। हम किसान को देखते हैं, वो बीज बोता है तो तुरंत उसको फसल नहीं मिलता है, वो रुका रहता है। वो जो सोचता है कि किसान बीज बोता है जमीन के अंदर तो उसे धीरज धरना पड़ता है जब तक वो फसल उत्पन्न नहीं का समय नहीं होता है, तब तक वो धीरज धरता है। यदि किसान निराश होकर कुछ कार्य ना करे तो फसल का आनंद वो नहीं उठा पाएगा। इसलिए हम धीरज धरें, भलाई करें और थके ना, करते जाए। एक दिन हम उस धीरज के फल को हम आनंद के साथ हम जो है उसका आनंद ले सकेंगे। शैतान का सबसे पसंदा वाला हथियार यह है कि वो हमें निराश करना चाहता है, कईयों को निराश कर देता है। दाऊद इसलिए भजन में कहता है कि हमें निराश नहीं होना है, हमको क्या करना है, परमेश्वर की स्तुति करना। वो तो कहता है तेरे शत्रु जो है, जो शैतान है, वो जो है तुझसे जलता है, वो
दांत पीस पीस कर पिघल जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसका नाम निशान मिट जाएगा। तू चिंता मत कर, तू भलाई करते जा। वो लेकिन परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है कि हम हार ना माने और हमें हमेशा जो है अच्छा काम करते जाना है और उसे पूरा करना है। कोई भी अधूरा काम नहीं करना है। परमेश्वर जो काम करता है वो पूरा करता है, कभी अधूरा नहीं करता है। क्या हमें ये सिखाता है कि हम लंबी पीड़ा सहकर, धीरज धरकर, हार ना मानकर मजबूती से हर अच्छा कार्य करें और उसके सफलता का फल का आनंद हम उठाते जाएं। हालेलुया, आमीन। तो ये जो है सब इस भजन से हमको सीखने को मिलता है। और वो कहता है उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि कर कर वो संतुष्ट होगा, क्योंकि वो देखेगा कि उसके हर लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा और शत्रुओं को परमेश्वर हराएगा। चौथी बात, जिस प्रकार हम बीज जमीन में बोते हैं और उसे समय लगता है, वैसे ही हमारे भलाई का काम भी एक बीज बोने के जैसा है और उसकी फसल को काटने के लिए हमको उसको समय लगता है। अपने वैसे ही हम भी जब भलाई लोगों की जीवनों में चाहते हैं तो हमें भी लंबे समय तक लोगों के लिए अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, ताकि वो भी हमारे साथ एक अच्छा और भलाई करके और हमें भी एक महत्वपूर्ण सफलता को प्राप्त करना है। हालेलुया। तो हम धीरज धरें। जब हम दूसरों की भलाई करेंगे तो लोग हमारी भी भलाई करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम भलाई करते जाओ, ताकि तुम्हारी भी भलाई परमेश्वर करते जाएगा। हम लोगों की भलाई करेंगे, परमेश्वर हमारी भलाई करते रहेगा। हालेलुया, आमीन। तो हम सीखे कि हमको परमेश्वर ने भलाई करने के लिए रखा है। लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन हमें सीखना है कि हमें गलत लग रहा है कि अच्छा काम करना है, कर रहे हैं, फिर भी हमें जो है सही निर्णय हमको लेना है कि हम भलाई करना कभी नहीं छोड़ेंगे, कि हम अच्छा ही करेंगे। एक प्रतीक है एक परिपक्व प्रभु विश्वासी का, कि वे हमारी भावनाओं से भी बढ़कर जीना चाहिए। जो लोग आत्मिक तौर से परिपक्व होते हैं वे अपना निर्णय परमेश्वर के वचन के आधार पर लेते हैं, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। वचन कहता है हियाव ना छोड़ो, हार मत मानो। हम जो है विजयी से भी बढ़कर है प्रभु यीशु में। हालेलुया। उसने हमको हार के लिए नहीं लेकिन विजय के लिए तैयार किया है। हालेलुया। निर्णय लेना है उसके वचन के आधार पर, ना कि अपनी भावनाओं पर। जब हम इस स्तर पर पहुंचते हैं तब हम उस रास्ते पर है जो हमें अचंभा में डाल देगी। हमारी सफलता के फसल की उन्नति को देखकर हम अचंभा मानेंगे कि कितना फसल परमेश्वर ने अच्छे काम के लिए हमें दिया है। हमें रखने के लिए भी जगह की कमी पड़ेगी। हालेलुया। मैं आज आप सभी को प्रोत्साहित करता हूं कि आप अच्छाई करने में बढ़ते चले और सफलता का जीवन हासिल करते रहे। यही जो भजन है दाऊद हमको सिखा रहा है इस भजन संहिता में। हालेलुया। वो कहता है सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, वह अनुग्रहकारी, दयावान और धर्मी होता है। हम ऐसे अंधकार के समय में भी जी रहे हैं जो है आज दुनिया अंधकार में है, लेकिन हमारे लिए इस अंधकार में भी प्रभु यीशु जगत की ज्योति बनकर आकर हमें अपने ज्योति में सीधे तरीके से चलना सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कहता है जो पुरुष अनुग्रह करता है और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वो हमेशा भलाई करते रहता है। हालेलुया, आमीन। और वही काम प्रभु यीशु ने, जो दाऊद ने इस भजन 112 में जो लिखा है, हम देखते हैं प्रभु यीशु ने पृथ्वी में आकर ऐसे ही भलाई के काम को किया। उसने जो है अंधों को आंखें दी,
लंगड़ों को पैर दिया, भूखों को उसने रोटी खिलाई, सब भलाई के काम प्रभु यीशु ने किया। और अंत में इतना भलाई करने के बाद भी उसने सबसे बड़ा एक और भलाई का काम किया, अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। वो पूरे काम को उसने उस क्रूस पर ख़त्म किया। और आज जो हम आज़ादी से जीते हैं, आशीष में जीते हैं, उन्नति में जीते हैं, सुरक्षा में जीते हैं, ये सब उस प्रभु यीशु के कारण है। हालेलुया। यदि मुझे सुन रहे हैं, आपने आज तक उस प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता यदि ग्रहण नहीं किया है, तो आज सुंदर अवसर है कि आप प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। इस भजन संहिता 112 की आशीष में जिए, जो भजन संहिता 112 कहता है, हालेलुया, उसका हृदय जो है संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। अपने शत्रु को वो देखेगा, जो शैतान है, जो शत्रु है, वो कैसा नाश होता है। हालेलुया। वो डरेगा नहीं, वो डरता नहीं है, वो निडर है, वो एक वॉरियर है, वो दाऊद राजा के जैसा है, हर परिस्थिति का डट का सामना करने वाला है। और परमेश्वर ऐसा ही अभिषेक आपके ऊपर भी उंडलेगा। आप यदि इस संदेश को सुने हैं और उसको मनन कर कर चलेंगे उसके ऊपर, तो आप भी ऐसे अभिषेक में बने रहेंगे। प्रभु इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आमीन। Thank you, Pastor Aubrey, on teaching us on Psalm 112. Indeed, we are feeling so blessed. At least we can be close to God by your teaching, and everyone who takes interest and be rooted in God's word. And now, brothers and sisters, we get into the solemn part of breaking of the bread and wine, where we can just come as we are and let God do the mending and the healing that we need in our lives. So let's just prepare our hearts even as we get into the breaking of bread and wine. Father God, we come to you in Jesus' name. Thank you for this time, Lord, that we could just come to you as we are. Lord, mold us and help us to look into the areas that we need to correct and we need to be in a line with you, Father. Thank you for the perfect sacrifice of your Son. Help us to be more like you. We make this prayer in Jesus' name. Amen. Let's break bread and wine together. Thank you, brothers and sisters, for joining us today on our online service. As you know, we meet every Saturday, 7:30. So in case you want to share this link with a friend or invite them for the online service,
do that by sharing this link with your near and dear ones. And even as we go ahead for the next week, remember to just delight yourself in the Lord, because He gives us the desires of our heart. In case you need a prayer or you want to share a testimony, you can give us a call. Our pastors, our leaders are always available. Our numbers will be coming up in the next screen. Till then, stay close to Jesus, be rooted in the Word, and remember to whom you belong.